हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने लिसाजस फिगर्स पे वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे बहुत सारे मैसेज कमेंट मिले हैं जिनमें आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसी पर एक और वीडियो अपलोड करूं। उसी को लेके आज हम यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले जो हमने केस लिया था वो था टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हैविंग फ्रीक्वेंसी रेशो 1:1। आज जो हम केस लेके चलेंगे वो है जब फ्रीक्वेंसी दो ऑसिलेशंस के बीच में उनकी रेशो होगी 1:2। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें हमने पूरा स्टेप वाइज सीखा था कि किस तरह से हम लिसाजस फिगर्स बना सकते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को आज बिल्कुल बेसिक से फॉलो करते हुए हम फिगर ड्रॉ करना सीखेंगे यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से, हैविंग फ्रीक्वेंसी रेशो 1:2। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। Consider two harmonic oscillations having equations. The first one is x equal to a cos omega t. This is the simple harmonic motions which is happening along x-axis, and this is the equation for this simple harmonic oscillation or simple harmonic motion. Let us consider another simple harmonic oscillation, that is y equal to b cos 2 omega t plus theta. This is the second simple harmonic oscillations which is happening along y-axis, and since x and y-axis are perpendicular to each other, then we can say that these two motions are also perpendicular to each other, which is the necessary condition to have Lissajous figures. So these are the two equations where A is the amplitude of simple harmonic oscillation which is happening along x-axis, and this B is the amplitude of simple harmonic oscillation which is happening along y-axis, and this omega is frequency along x-axis. And you can say here, you can see the difference that in the oscillation having which is happening along y-axis, the frequency is 2 omega. So we can say that this frequency ratio, if I denote this frequency with omega 1, then this frequency is 2 omega. So here ratio is 1:2। जो हमने केस लिया था कि हम फ्रीक्वेंसी रेशो 1:2 लेके चलेंगे, that is satisfied here, and theta is the phase difference between the simple harmonic oscillation which is happening along x-axis and the simple harmonic oscillation which is happening along y-axis. So this is the simple scenario that frequency ratio between two oscillation is 1:2 omega, and here is 2 omega, 1:2. So let us see step wise how can we proceed for the Lissajous figure. Step number 1, एक स्टेप को आप ध्यान से समझिएगा। स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ अ सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू द एम्पलीट्यूड. if we are drawing the circle in x-axis, then we will take the radius is equal to amplitude, which is the amplitude in x-axis in case of simple harmonic oscillation. So step number 1 is draw a circle having radius equal to amplitude, and here amplitude in x-axis is a, having radius a. Let us draw this circle. Let us suppose this is our x-axis, then here we थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं। लिसाजस फिगर बनाने में हमें अच्छा रहेगा, जितना बड़ा हम सर्कल ड्रॉ करेंगे फिगर उतनी ही हमें अच्छी देखने को मिलेगी। Let us suppose this is our circle number 1 having radius equal to a, and let us suppose this is the center of this circle, and draw horizontal axis as well as vertical axis. इस सेंटर को नाम दे देते हैं सेंटर O1, एंड लेट दिस पॉइंट इज P1. Okay, the next is
this is the circle of radius. If I will write its radius, it's equal to a, which is the amplitude along x-axis. Next step is draw a circle having radius b along y-axis, and this circle was along x-axis. Let us draw another circle. The size of circle will be different. The reason is because this radius a and b will be different. So the size of this circle and this circle will be different according to the amplitude. So this is circle number 2. Let us draw its axis. This is the center O2. This is center number O2. Okay, so we have drawn two circles having radius equal to a and radius equal to b. The next step is step number 2. Fix the point P1 and P2. Fix the point P1 and P2. You can see here I have fixed point P1 along x-axis because this circle represent motion along x-axis. So यहाँ पर P1 पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया है एंड द केस वी आर टेकिंग लिसाजस फिगर ड्रॉ करने के लिए हम डिफरेंट केस लेते हैं. व्हेन phase difference is 0 degree, when phase difference is pi by 4, when phase difference is pi by 2, when phase difference is 3 pi by 4. There are different cases. The first case I am taking here is case number 1, जिसके अकॉर्डिंग हम फिक्स करेंगे पॉइंट P1 और पॉइंट P2 कहाँ पर होगा. केस नंबर 1 इज when theta is equal to 0 degree, that is phase difference between the motion along x axis and the motion along y axis is 0 degree. So the equations will become x equal to a cos omega t and y will be equal to b cos 2 omega t. Here the phase difference is pi. So the point P1 होगा जहाँ से x axis start होती है, the point P1 will be here and point P2 कहाँ पर होगा. This circle represent motion along y axis. So in positive side this will be the point P2. This is clear. अगर यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस होता तो हम इस सर्कल में वो फेज डिफरेंस दिखाते और एंटी क्लॉकवाइज हम इस एक्सिस के साथ वो एंगल बना देते. हम इसके आगे थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 वाला केस लेके भी चलेंगे. वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर फेज डिफरेंस शो करेंगे. दिस वेक्टर O1 P1 will represent simple harmonic motion which is happening along x-axis. We will rotate this vector throughout and this O2 P2 will represent motion along y-axis and we will rotate this in anti-clockwise direction. Step number 3. Divide circle number 2. If I will say this circle number 2 and this as circle number 1, divide circle number 2 into 8 parts and divide circle number 1 into 16 parts. Here we have divided circle number 2 into 8 parts and circle number 2 into 16 parts. The reason behind it, the ratio is 1:2 or you can say that omega 1 is equal to 2 omega 1. तो जितना omega 2 का मतलब है which is along y axis. तो y एक्सिस में जितना हम y एक्सिस वाले सर्कल को जितने पार्ट में ड्रॉ करेंगे उसका 2 टाइम होगा. 2 टाइम है ओमेगा 1. ओमेगा 1 इज 2 टाइम ऑफ दिस ओमेगा 2. अगर इसको मैं ओमेगा 2 से डिनोट करता तो ये 2 टाइम है. तो हम इसको क्या करेंगे, इसका 2 टाइम डिवाइड करेंगे. अगर इसको मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको हम 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे. लेट अस डिवाइड दीज सर्कल्स इनटू 8 एंड 16 पार्ट्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सर्कल नंबर 1 को
16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एंड सर्कल नंबर 2 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इन दोनों सर्कल की बाउंड्री को आपस में यहाँ पर कोइंसाइड करा के देखते हैं कि कहाँ पर दोनों का कॉमन रीजन हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं सर्कल नंबर 1 को इसकी एक्सिस को बिल्कुल ऊपर तक ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम इसे थोड़ा ऊपर तक ले जाएं और इसकी एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेते हैं, so दिस इज O1 पॉइंट की प्रोजेक्शन, O2 पॉइंट की प्रोजेक्शन जिस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रही है। लेट अस से दिस पॉइंट एज पॉइंट नंबर O एंड इस सर्कल की एक्सिस, इस सर्कल की एक्सिस, इस सर्कल की एक्सिस, इस सर्कल की एक्सिस जहाँ पर कोइंसाइड कर रही हैं, दैट इज़ आवर कॉमन रीजन। दैट इज़ जो हमें लिसाजस फिगर देखने को मिलेगी वो हमें इस सर्कल के अंदर कहीं, इस स्क्वायर या इस रेक्टेंगल के अंदर हमें कहीं देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी इस सर्कल का डायमीटर है, दैट इज 2a एंड दिस विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, दैट इज 2b। कॉमन रीजन हमने ढूंढ लिया है। इस रीजन में हमें देखने को मिलेगी लिसाजस फिगर। लेट अस ड्रॉ द लिसाजस फिगर। करना क्या है, यहाँ से 0 पॉइंट की प्रोजेक्शन, यहाँ से 0 पॉइंट की प्रोजेक्शन, जहाँ पर कोइंसाइड की वहाँ से हमारी बननी स्टार्ट होगी लिसाजस फिगर। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिल चुका है। द सेकेंड पॉइंट विल बी 1 पॉइंट की प्रोजेक्शन को ऊपर खींचिए, यहाँ से भी 1 पॉइंट की प्रोजेक्शन को यहाँ लेके आइए। सो इफ आई ड्रॉ this projection of point number 1 and from here point number 1 it will be somewhere here and this is the intersection point of these two। so लिसाजस फिगर हमारी दिस यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ से पॉइंट नंबर 2, यहाँ से पॉइंट नंबर 2, जहाँ पर कोइंसाइड किए उस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। This is point number 2 and from here this is point number 2. Point number 3 and from here point number 3, दोनों का intersection this point, point number 4 and point number 4 coinciding on this point, point number 5 and from here point number 5, this is the intersection point, point number 6 and from here point number 6, they are coinciding here, intersection point, point number 7 and from here point number 7, it is somewhere, it will be not this point, 7 will be somewhere here. This is point number 7 and point number 8 and point number 8, this is the point. So हमें फिगर क्या देखने को मिली, I am drawing the figure, it will be like this। यहाँ से बननी स्टार्ट होगी और यहाँ तक, अभी हम इस रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इट विल बी समवेल लाइक कुछ पैराबोला की तरह हमें देखने को मिली है फिगर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसको हमने 16 पार्ट में डिवाइड किया है और इसको 8 पार्ट में। तो अभी तक हमने जो फिगर ड्रॉ की है वो दोनों का 8 पॉइंट तक का जो इंटरसेक्शन था वो हमने कंसिडर किया है। अब
यहाँ से पॉइंट नंबर 9 की इंटरसेक्शन, और अब यहाँ से पॉइंट नंबर 9 की इंटरसेक्शन अगर हम देखना चाहें तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी फिगर में 8 के बाद दोबारा रिपीटिशन करूँ नंबर्स की, यहाँ तक हम थे 8 नंबर पॉइंट तक, तो ये होगा पॉइंट नंबर 9, दिस विल बी पॉइंट नंबर 10, दिस विल बी 11, 12, 13, दिस विल बी 15, दिस विल बी 14, 15 एंड दिस विल बी 16। तो हमने कुछ नहीं किया, वही 8 पॉइंट थे जहाँ तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद काउंटिंग रिपीट रखी, 9, 10, 11, 13, 14, 15 एंड दिस इज 16। तो अब इन्हीं पॉइंट को हम फर्दर आगे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट नंबर 8 के बाद पॉइंट नंबर 9 की इंटरसेक्शन एंड फ्रॉम हेयर पॉइंट नंबर 9 की इंटरसेक्शन, ये कहीं यहाँ होगी, पॉइंट नंबर 10 एंड फ्रॉम हेयर पॉइंट नंबर 10 it will be somewhere here, point number 11 and from here point number 11 it will be here, 12 and from here 12, 13 and from here point number 13, point number 15, 14 and from here point number 14, point number 15 and from here point number 15, point number 16 and from here point number 16। तो अगर आप देखेंगे पहले जब हमने लिसाजस फिगर ड्रॉ की तो हम यहाँ से चले थे और यहाँ तक वापस देखो लिसाजस फिगर ऑसिलेट कर रही है इन्हीं पॉइंट को दोबारा मीट करते हुए वापस इस पॉइंट तक। तो हमें जब थीटा 0 डिग्री है, दैट इज़ दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी रेशो 1:2 है, तो केस नंबर 1 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये हमें लिसाजस फिगर देखने को मिल गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टेप क्या थे? स्टेप नंबर 1, सर्कल, हमने एक सर्कल नंबर 1 ड्रॉ किया जिसकी रेडियस थी इक्वल टू एम्पलीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस। सर्कल नंबर 2 इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन अलोंग वाई एक्सिस। सर्कल नंबर 2 को हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, काउंटिंग को रिपीट रखा 16 तक, और यहाँ पर इसको डिवाइड किया है 16 पार्ट्स में। रीज़न ये था ओमेगा 1 इक्वल है 2 टाइम ऑफ ओमेगा 1 के, 2 टाइम ऑफ ओमेगा 2 के, सॉरी। तो जितना पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे उसका डबल हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमने सिर्फ हर एक पॉइंट की इंटरसेक्शन दोनों से चेक की है, जो फिगर हमने देखने को मिली दैट इज़ द लिसाजस फिगर इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशो 1:2 एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। केस नंबर 2, इसी में जब फ्रीक्वेंसी रेशो 1:2 है लेकिन जब फेज डिफरेंस π/4 का हो, सो अगर फेज डिफरेंस π/4 का है तो स्टेप क्या रहेंगे? स्टेप सेम है। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल along x axis having radius equal to amplitude along x axis. Draw a circle number 2 along y axis having radius equal to the amplitude along y axis. Step number 2, fix the point P1 and P2, and if theta equal to π/4, these will be the equation from here, x equal to a cos omega t and b equal to y equal to b cos 2 omega t plus π/4. Step number 3 is divide circle number 2 into 8 equal parts and divide circle number 1 into 16 equal parts. Let us see. Step number 1 is draw a circle of radius equal to a along x axis. This will be our circle. Circle number 1, circle number 2, this is circle number 2, axis, this is center O1 and this is center O2. Let us draw their axis. देखते हैं दोनों का कॉमन रीजन क्या बनता है। दिस इज सेंटर पॉइंट,
सो हमें कॉमन रीजन दोनों का मिल चुका है. लेट अस ड्रॉ द कॉमन रीजन. दिस इज पॉइंट नंबर O and this is the common region for both simple harmonic oscillations which are perpendicular to each other having frequency ratio 1:2. तो इस रेक्टेंगल के अंदर हमें देखने को मिलेगा अपना लिसाजस फिगर. इस रेक्टेंगल की अगर हम ये बात करें, दिस विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस 2a, और अगर इस रेक्टेंगल की विड्थ की बात करें, विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस, सो इट विल बी इक्वल टू 2b. इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा लिसाजस फिगर. अब देखते हैं, अब फेज डिफरेंस π/4 0 डिग्री तो है नहीं, π/4 है, तो हमें फिक्स करने पड़ेंगे पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2. पॉइंट P1 विल रिमेन हेयर बिकॉज along x axis the equation is simple, a cos omega t. So point P1 will be here, but point P2 अब y एक्सिस पर नहीं होगा, इससे कहीं कितना एंगल π/4 आगे होगा. तो हम इस एक्सिस को बेस लेके यहाँ से π/4 का एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. दिस विल बी हेयर π/4, सो दिस विल बी पॉइंट P2. अब इस P1 को रेफरेंस मान के, दैट इज़ ये होगा हमारा पॉइंट नंबर 0 और ये होगा हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 0. P2 पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 0. इनको यहाँ से रेफरेंस मान के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्कल को आपको डिवाइड करना है 8 इक्वल पार्ट में और इसको 16 इक्वल पार्ट्स में. लेट अस डिवाइड दीज सर्कल्स इनटू इक्वल पार्ट्स. जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सर्कल को मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. रेफरेंस मेरा ये है पॉइंट P2, जहाँ से हमने काउंटिंग 0 से स्टार्ट की है एंटी क्लॉकवाइज और 8 तक, और इसको हमने डिवाइड किया है 16 इक्वल पार्ट में. रेफरेंस फ्रॉम पॉइंट P1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 16 हेयर. सो अब हमें करना क्या है, हर एक पॉइंट की इंटरसेक्शन हमें इस रेक्टेंगल में देखनी है. यहाँ से और यहाँ से दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पॉइंट्स हमें मिलते जाएंगे. अब यहाँ पर भी दिक्कत वही आएगी, यहाँ पर 16 इक्वल पार्ट है, यहाँ पर सिर्फ 8 इक्वल पार्ट हैं. तो अगर इस काउंटिंग को मैं 8 के बाद कंटिन्यू रखूँ, सो इट विल बी पॉइंट 9, इट विल बी पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 और यहाँ से भी पॉइंट नंबर 1 की इंटरसेक्शन आप यहाँ पे चेक कीजिए. हेयर इज़ पॉइंट नंबर 1 और यहाँ से पॉइंट नंबर 1, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. पॉइंट नंबर 1 एंड पहले आप 0 को चेक कर लीजिए पॉइंट नंबर 1 से पहले. इस पॉइंट को बाद में ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले चेक कीजिए फॉर पॉइंट नंबर 0. पॉइंट नंबर 0 की ऊपर तक प्रोजेक्शन और यहाँ से पॉइंट नंबर 0 की प्रोजेक्शन. यहाँ से पॉइंट नंबर 0 और यहाँ से पॉइंट नंबर 0 बोथ आर इंटरसेक्टिंग हेयर. सो हमारा लिसाजस फिगर बनना स्टार्ट होगा इस पॉइंट से. पॉइंट नंबर 1 की प्रोजेक्शन जो हमने अभी ड्रॉ की थी, इट विल बी समवेयर हेयर, और यहाँ से पॉइंट नंबर 1 इट विल बी हेयर. ये हमें अपना दूसरा पॉइंट मिल गया. पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 और यहाँ से पॉइंट नंबर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट. पॉइंट नंबर 3 and from here point number 3 intersection point is this. Point number 4 and from here point number 4 intersection point. Point number 5 and from here point number 5 intersection point is, this is 4
point number 5 here, point number 6 and from here point number 6 intersection point is this, point number 7 and from here point number 7 it will be somewhere here, point number 8 and from here point number 8 it will be somewhere here. तो अगर मैं इसको पहले 8 तक ड्रॉ कर लूँ तो हम कहीं यहाँ से चले थे, अभी तक का जो लिसाजस फिगर है वो हमें ये देखने को मिला है, लेकिन अभी ये आधा है. 8 के बाद पॉइंट नंबर 9 एंड फ्रॉम हेयर पॉइंट नंबर 9 बोथ आर कोइंसाइडिंग एट दिस पॉइंट नंबर 10 एंड फ्रॉम हेयर पॉइंट नंबर 10 दिस विल बी पॉइंट. अगर मैं इनको नाम देता चलूँ तो ये था 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorry, this was 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, this is point number 8, this is point number 9, 10 के बाद 11 की प्रोजेक्शन यहाँ से 11 और यहाँ से 11 इंटरसेक्शन पॉइंट दिस 12 एंड फ्रॉम हेयर 12 इंटरसेक्शन पॉइंट, नाम भी देते चलें साथ में. 10 के बाद दिस इज़ 11, दिस इज़ अगेन 12, 13 एंड फ्रॉम हेयर 13 पॉइंट की प्रोजेक्शन एंड 13 दिस इज़ पॉइंट नंबर 13, point number 14 and from here point number 14, this is point number 14, point number 15 and from here point number 15, this is point number 15 and 16 this is 16. तो अगर मैं इनको ड्रॉ कर दूँ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 तो हमें ये कुछ इस तरह की फिगर देखने को मिल गई. आई होप आपको क्लियर होगी. हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, स्टेप्स फिर वही हैं. 2 सर्कल ड्रॉ किए, रेडियस ए रेडियस बी, दोनों की इंटरसेक्शन हमने ऊपर ले ली, दोनों का हमें कॉमन रीजन देखने को मिल गया. जिस रीजन में हमें अपना लिसाजस फिगर ड्रॉ करना है वो हमें कॉमन रीजन मिल गया. डिवाइड किया 8 इक्वल पार्ट, थीटा इक्वल टू π/4 बनाने के बाद इफ फेज डिफरेंस इज π/4 तो उस π/4 जहाँ पे एंगल बना और इस सर्कल को कट किया दैट इज पॉइंट नंबर P2 एंड पॉइंट नंबर P1 विल बी अलोंग एक्स एक्सिस. दिस इज द रेफरेंस. 8 इक्वल पार्ट, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 16 इक्वल पार्ट्स. यहाँ से हर एक पॉइंट की हमने इंटरसेक्शन या प्रोजेक्शन ऊपर ली और यहाँ से भी हमने हर एक पॉइंट की प्रोजेक्शन आगे ली. 0 जहाँ पर 0 को कट किया पॉइंट मार्क किया, 1 जहाँ पर 1 को कट किया पॉइंट मार्क किए, साथ साथ में मिलाते गए. जो भी फिगर हमें देखने को मिलेगी दैट इज़ आवर लिसाजस फिगर. तो अगर आपको क्लियर नहीं है इस वीडियो को आप फिर से दोबारा देखिए. आई होप आपको हर एक स्टेप क्लियर हो जाएगा. हमने हर एक पॉइंट को यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू.